Good morning, student, and today we are going to discuss the next unit, and the topic is the conclusion code. As we know, हमने conclusion code के बारे में डिकॉम में पढ़ा था. In that, the conclusion code is a single topic, ठीक है, in any unit. But in ITC subject, and the conclusion code is the one unit consist of that is about the what is the conclusion code and what is the encoder block diagram. That is when the encoder are the FIR or IAR, as you know in the DSP what is the FIR and IR. वही डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे भी किस तरीके से आपके मतलब आपके फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ होते हैं, एंड ऑल्सो then how the codes are generated in the convolution code, and then the code rate in the convolution code is equal to the 1 upon 2 bits, and that is 1 upon 2 means a single message bit can be presented into the 2 bits of the encoded. And after that, so many diagrams are there. That is the code tree, as we know already known about the code tree, and then the trellis diagram and then state diagram. And ये तो मैं डिस्कस करूंगा. फिर आपने वहाँ पे कुछ फ्लिप फ्लॉप्स के वर्ड भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, किस तरीके से हियर वी आर यूजिंग द फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर द मैसेज बिट्स. एंड आफ्टर दैट अगर कोडिंग आप परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग द कन्वर्जन कोड, देन देयर इज आल्सो द डिकोडिंग प्रोसेस, एंड डिकोडिंग प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बिटरबी एल्गोरिथम. ये सब डिस्कस करेंगे. So first of all, I am going to brief and what is the collusion code and what is the process behind it and how we get the code for that particular message. तो हम डिस्कस करेंगे एंड कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे कि अबाउट द जनरेटर पॉलिनोमियल, हाउ जनरेटर पॉलिनोमियल कैन बी यूज्ड. As we know in the Hamming code, by using the generator polynomial, we can generate the code word for the particular message. In that also there is a generator polynomial which are used to get the code in the form of the convolution code. Now, right now I am going to brief and what is the convolution code. Now, the unit is the unit 5, and the topic is the convolutional code. Convolutional codes are linear codes that have additional structure in the generator matrix so that the encoding operation can be viewed as an filtering or convolution operation. A convolutional encoder is typically represented as sets of digital binary filter are shown in figure. Then what should be a figure? मैं figure बना तो फिर explain करता हूँ.
and in figure I think there is the D, a single D, and then here also next D, then this is the MK, then MK minus 1, and final we get MK minus 2, and here we get code CK1, and here we get code CK2, and using the switch, and here we get CK, and ये पूरा कंप्लीट आपका फिगर हो गया। तो थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं आपको मैं, एंड हियर द रेट 1/2 convolution code, और दिस इज द FIR encoder। ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया गया है, एंड अबाउट द कन्वोल्यूशन कोड, by definition we can say that a convolution code are the linear code and that have addition structure in generator matrix so that the encoding operation can be used as the filtering and the convolution process। तो देयर यहाँ पे आपका एक लीनियर ब्लॉक कोड की तरह है, बट एक एडिशन स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज किया हुआ है। बाय दिस वी कैन से दैट बिकॉज हियर वी आर यूजिंग द फिल्टरिंग प्रोसेस एंड द कन्वोल्यूशन प्रोसेस, बाय नेम द फिल्टरिंग, हियर वी कैन से दैट the this is called the convolution code, and convolution encoder is typically represented a set of digital binaries filter and are shown in the figure, just like ये एक डिजिटल फिल्टर की तरह इसको इंडिकेट किया गया है ऑलरेडी जो फिगर्स में दिखाया गया है। तो मैं फिगर एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे फिगर क्या है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस साइन इज यूज्ड टू इंडिकेट द कन्वोल्यूशन ऑपरेशन बिटवीन द मैसेज बिट्स, एंड हियर वी आर यूज्ड टू इंडिकेट द D is used printed by the flip flop। ये फ्लिप फ्लॉप की तरह होता है विच इज यूज्ड टू, या सिंपल एक रजिस्टर है, आपको ये कह लो कि ये फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करता है, या एक रजिस्टर ही आपका है जो 1 बिट मैट्रिक्स को स्टोर करता है। होता क्या है कि अब यहाँ पे जैसे तीन आपके लिखे गए MK, MK-1 and MK-2, and what is the MK and MK-1 and 1/2, ये सिंपली है क्या। Let us consider if you take the example of the 1011, हम मान लिया ये मैसेज बिट हम लेते हैं, मान लिया हमने ये मैसेज बिट लिया, ठीक है। अब जब मैसेज बिट लिया तो 1 by 1 हमारे जो मैसेज होते हैं एक साइड से इंसर्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए इनिशियल में होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट व्हेन द encoding process start, then the value of flip flop basically storing element which is used to store the 1 bit element, and in the initial process by default we can say that the value of the D is equal to 0, there is the value of क्या वो 0 वैल्यू होती है, बट in the message the first bit is this one, ये हमारा पहला बिट होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब हम इस बिट्स को जब इंसर्ट करते हैं देन ये वैल्यू 1 होगी हमारी और ये वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अब क्या है, उसके बाद क्या है कि अब हम एक बिट की और अभी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक बिट आप और दोगे तो ये शिफ्ट होगा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका यहाँ पे 1 हो गया और ये आपने 1 को अगेन इंसर्ट किया। अब आपके 3 बिट्स हो गए। तो जैसे आपको पता है कि दो बिट्स को इंसर्ट करने के बाद मींस जैसे एक एक बिट जब शिफ्ट होता है मींस या आफ्टर डिले या आफ्टर द क्या 1 बिट शिफ्टिंग एंड वी गेट द वैल्यू MK, MK-1, MK-2, मींस आप ये है कि हमारा जो मैसेज पहले था एक बिट शिफ्ट होने के बाद जो आपका वैल्यू आपका है वैल्यू वही रहेगा, बट एक फ्लिप फ्लॉप से पास होने के बाद उस बिट का जो नेम हो जाएगा दैट इज कॉल्ड MK-1, जो चीज लिखा अगेन
अगर फ्लिप फ्लॉप से अगर पास होगा, दूसरे फ्लिप फ्लॉप से पास होगा, तो आप कह सकते हैं कि दिस बिट इज द mk-2। सिमिलरली कितने फ्लिप फ्लॉप से वो पास कर रहा है तो उसका जो नेमिंग होगा वो सबस्क्रिप्ट में वैल्यू चेंज होगा। जस्ट लाइक अगर इसके बाद कोई फ्लिप फ्लॉप होता तो क्या होता, वो k mk-3 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपके हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया किस तरीके से हम बिट्स को दे रहे हैं एंड किस तरीके से हम mk-1 एंड mk-2 कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये सब चीजें आपकी हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड बट अब यहाँ पे है क्या, अब यहाँ पे जो ck1 कोड है एंड ck2 कोड फॉर्म मींस अब है क्या कि यहाँ पे अभी आपसे बोला गया था, जैसे यहाँ पे आपका कन्वर्जन कोड का जो रेट होता है दैट इज इक्वल टू 1/2 मींस मैसेज बिट ऑफ द सिंगल बिट एंड 2 बिट्स आर यूज्ड मींस हम एक और 2 बिट्स को और हम मिलता है मींस एक सिंगल मैसेज बिट से हम 2 बिट्स हमें मिलता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हियर द वैल्यू ऑफ k is equal to 1 and n is equal to 2 and we know that the rate can be defined by the k by n, then here we get the 1/2। होता है कि आप जब एक मैसेज बिट देते हैं एक बिट का एंड वी गेट द आउटपुट इनकोडेड आउटपुट इन द 2 बिट कैसे मिलेगा वो आपको रहा पता है। जब ये सारी चीज आप इंसर्ट कर लेंगे, आफ्टर इंसर्टिंग वी हैव टू कैलकुलेट ck1 एंड ck2। तो ck1 कैसे कैलकुलेट हो रहा है, एज वी नो दिस इज द साइन ऑफ द मॉडुलो, दिस मॉडुलो फंक्शन मींस देयर इज XOR ऑपरेशन बिटवीन द दिस मैसेज एंड दिस मैसेज। तो वी गेट, आप जब इन दोनों बिट्स का जब XOR लेंगे तो वी गेट द कोड ck1। सिमिलरली आपका जो ck2 कोड है वो क्या है, वो तीनों बिट्स का XOR है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये XOR ऑपरेशन जो लिख रहे हैं आगे हम डिस्कस करूंगा, हाउ द जनरेटर पॉलिनोमियल कैन बी जनरेटेड एंड हाउ द जनरेटर पॉलिनोमियल कैन बी प्रिंटेड इन द वेक्टर फॉर्म या बिट्स फॉर्म, आगे हम डिस्कस करेंगे अभी हम। तो अभी मैं ब्रीफ में ये जानो कि आपका जो सिंगल जो मैसेज बिट्स है ये आपके 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक चीज आपको और मैं क्लियर कर दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो कोड है एक सिंगल को आप 2 में रिप्रेजेंट करो या 3 में रिप्रेजेंट करो, डिपेंड अपॉन कि आपके कितने कोड हैं, सिर्फ 2 हैं। आपका ck3 भी हो सकता है, तो वो भी ck3 भी किसी न किसी इनपुट्स के मॉड्यूल का वो मॉडल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही है मींस आप ये कह सकते हैं हियर द कोड इज इक्वल टू द 1/3। बट अगर आपसे बोल दे कि यहाँ पे इनकोडेड हमारे जो बिट्स होंगे वो 3 होंगे, तो देयर इज आल्सो द 1 ck3 आपके होंगे वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारा मॉडल ऑपरेशन वहां पे होगा। अब क्या होता है कि एक मैसेज बिट देने के बाद वी गेट 2 बिट्स इन द फॉर्म ऑफ द ck1 एंड ck2 एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द एक्चुअल बिट। ठीक है, एक्चुअल जो हमारा कोड होगा मैसेज बिट के बाद वो कोड एक बार हमारा ये लिखा जाएगा, फिर हमारा ये लिखा जाएगा मींस अ सिंगल मैसेज बिट इनपुट वी गेट द मैसेज आउटपुट मैसेज ऑफ द 2 बिट। ठीक है, तो हियर वी आर यूजिंग द स्विच, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लेस दिस स्विच टू द दिस वन मींस हमने जब यहाँ पे इनपुट को दिया हुआ है तो आपको सारी वैल्यूज मिल गई, आपको ck1 में मिल गया और ck2 मिल गया, ये आपको मिल गया। एंड आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, वैल्यूज मिल जाएगा, देन वी हैव टू इंटरलीव्ड, हियर वी आर यूजिंग द वर्ड इंटरलीव्ड मींस देयर आर द सेपरेट बाइनरी स्ट्रीम एंड वी हैव टू इंटरलीव्ड मींस क्या होता है कि आप पहले वाले कोड्स का पहला बिट और दूसरे वाले कोड का दूसरा बिट मींस पहला बिट उसको इंटरलीव करें, देन प्लेस द गामा साइन, जिस लाइक वी कैन सी दैट। अब मैं एग्जांपल कंसीडर, मान लीजिए आपको ck1 आपको मिला इज इक्वल टू 010 मान लीजिए, और ck2 आपको मिला 110 मान लीजिए आपको मिला। तो एक्चुअल जो कोड हमारा होगा हम इन दोनों को पहले को इंटरलीव कर देंगे, दूसरे को इंटरलीव कर देंगे और ये इंटरलीव करेंगे एंड फाइनली वी गेट 01, 11, 00। इस तरीके से 2 बिट स्ट्रीम को इंटरलीव करना होता है बिकॉज द एक्चुअल कोड इज बाय यूजिंग द या सिंपली गेट द इंटरलीविंग ऑफ द 2 बिट स्ट्रीम। तो इसीलिए यहाँ पे स्विच का यूज किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय इंडेक्सिंग या बाय द सीक्वेंसिंग देयर इज द first of all by using the switch we can take the this one and then after again this switch placed to this terminal and we get the second code, then after getting the 1 bit from the ck1 and 1 bit from the ck2 and we get the final code। okay, तो ये एक प्रोसेस है, बाकी और मैं आपको ब्रीफ में जब मैं डिस्कस करूंगा, जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो आगे में डिस्कस करूंगा किस तरीके से ये कोड को फॉर्म किया जा रहा है। एंड देन व्हाट इज द, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, r is equal to 1/2 अभी मैं ऑलरेडी डिस्कस किया। as we know in the linear block code the rate can be defined by the ratio of the message bit to the encoded total number of the encoded bit, here the message bit of the 1 bit and encoded bit of the 2, and after that we can say that here the rate of the convolution code is equal to 1/2 and here also the one term is FIR. FIR means we are discussing in the FIR term in the DSP
that is the full form of FIR is the finite impulse response, means the output doesn't depend upon the input, means the output symbol depend upon the current symbols, means आप at a time the present symbol आप देंगे and then we get the output, means in that there is only the forward part, there is no feedback path, there is no backward part. If there is a backward part, then this encoder is called the IIR, but this figure represents the FIR code because there is only the forward path and also फॉरवर्ड पास होने की वजह से क्या क्या आपको इसको FIR का नाम दिया गया है। अगर आपके आगे डिस्कस करेंगे हम कि जब आपका जनरेटर पॉलिनोमियल में एक्चुअली होता क्या है कि जब फॉरवर्ड पास होने से सिर्फ हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल में सिर्फ हमारा न्यूमरेटर होता है, बट in the IIR encoder, अगर आपका IIR encoder होगा, in that there is a backward path होने की वजह से क्या होता है कि in the generator polynomial there is also the polynomial of the in the denominator part, ठीक है। इस तरीके आगे हम डिस्कस करेंगे, मैं ब्रीफ में अभी आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। आई थिंक तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे ब्रीफ किया जा रहा है। देन नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा और मैं आपको ब्रीफ कर दूं किस तरीके से चीजें ये लिखी जा रही हैं आपको। आई थिंक आप लोग ये फिगर समझ में आया होगा। तो अभी मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस कर दिया अबाउट द डी एंड व्हाट इज द फ्लिप फ्लॉप, सब मैंने बता दिया है। तो जैसे मान लीजिए आपका बेसिकली जो अभी मैंने बोला था आपसे, मैंने जो आपका CK1 जो है, CK1 इज इक्वल टू आपका था MK एक्सॉर, यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ प्लस का साइन लिखते हैं, बेसिकली वहां पे एक्सॉर ऑपरेशन होता है, और MK -2 ये हो गया, एंड K2 is equal to MK plus MK minus 1 plus MK minus 2, ये आपका हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर इंटरलीविंग, इंटरलीव करने से हमने एक एग्जांपल में कंसीडर कर लेता हूं। मान लीजिए आपका CK1 अगर आपका एक कोड फॉर्म हुआ इज इक्वल टू, मान लीजिए 1, मैं सिर्फ एग्जांपल अभी मैंने लिया था, मैं डिस्प्ले कर देता हूं, और मान लीजिए आपका CK2 आपको मिला इज इक्वल टू 1 1 1, मान लीजिए आपको मिला। इंटरलीविंग का मतलब ये है एक्चुअल जो हमारा कोड होगा CK इज इक्वल टू इंटरबीटिंग द फर्स्ट बिट ऑफ द 2 बिट स्ट्रीम, देन सेकंड, देन थर्ड, तो क्या होगा आपका 1 1, 0 1, 1 1, इस तरीके से बिट्स को इंटरलीव करते हैं, ठीक है। तो अब ये इसीलिए ये होने वजह से क्या है, इसका जो रेट डिफाइन किया गया है, आपका जो रेट है दैट इज द 1/2, मींस यहाँ पे क्या है। अब तो और मैं डिस्कस कर दूं, जैसे फॉर द इनपुट स्ट्रीम, अगर मान लिया आप इनपुट स्ट्रीम आपने मान लिया मैसेज m इज इक्वल टू आपने ले लिया हुआ है 1 1 0 0 1 0 1, I think so this is of the 7 bits, 1 1 0 0 1 0 1, the outputs are C1 is equal to 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, and this of the 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो आपने देखो यहाँ मैसेज बिट लिया, उस मैसेज बिट के अकॉर्डिंग इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है, ये जो आपका लिखा गया इसी इनकोडर सर्किट को फॉलो किया, एंड वी गेट दिस वन। अब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये राइज होगा कि सर यहाँ पे हमने जो मैसेज बिट लिया है विच इज ऑफ द 7 बिट, बट हियर वी गेट द कोड ऑफ द 9 बिट, हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल कि आप जो मैसेज दें वो आप कुछ n बिट्स का दें और आपका जो इनकोडेड मींस कोड होने के बाद जो आपका बिट्स मिले वो आपका बिट्स आपका बढ़ जाए, हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, दिस इज पॉसिबल इन द इनकोडर, दैट इज कन्वर्जन इनकोडर, बिकॉज़ एज वी नो, मैं डिस्कस किया था मैंने आपसे, होता है क्या है, आप जब पहला मैसेज बिट को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इस केस में ऐसा 2 बिट एक्स्ट्रा, ये आपका 7 है, ये 9 है, ऐसा क्यों है?
जैसे आपने बोला था, मैंने आपको जब मैंने फिगर एक्सप्लेन किया इस तरीके से, जैसे आपका ये पहला ब्लॉक था और फिर आपका ये पहला ब्लॉक था, डी आपका हो गया, ये डी हो गया, इधर एम के माइनस वन हो गया, और ये आपका एम के माइनस टू, और ये आपका एम के था। होता क्या है कि जब हमारा पहला बिट जब इंसर्ट करते हैं, ये चीज है, ठीक है, इंसर्ट करते हैं, तो होता क्या है कि हमारा जो पहला बिट लेते हैं, तो वो पहला बिट एक ट्रैवर्सिंग वर्ड आता है, मींस कि वो सारे फ्लिप फ्लॉप से वो पास हो। इसका मतलब ये मीन दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बिट टू द लास्ट बिट, सारे बिट जो है सारे फ्लिप फ्लॉप से पास हो। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम पहला बिट हम यहाँ पे देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हियर वी टेक द इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी वैल्यू जीरो होती है इनिशियल बाय डिफॉल्ट, ये आपको मानना ही मानना है, वैल्यूज आपकी जीरो होती हैं। ठीक है, जब ये आपकी वैल्यूज आपकी जीरो हो गई, तो आपने आप एक बिट दिया, वी गेट सम रिलेशन, कुछ मिल जाएगा आपको, C1 C2 मिल गया। अगेन आफ्टर शिफ्टिंग वन बिट, दिस जीरो शिफ्टेड टू दिस वन, this shifted this one, and this again bit from the message can be taken, then calculate again, default zero is also be present in the last this one, अभी भी है by default, ठीक है, we get the relation। after that अब वन बाई वन बिट्स को आप प्रेस करोगे एंड वी गेट द आउटपुट, ये आपको आउटपुट मिलता चला जाएगा। तो जो रीजन ये है कि आपने जो यहाँ पे नंबर ऑफ जो फ्लिप फ्लॉप्स आपने जो यूज किया हुआ है, उसकी उतने बिट्स आपके बढ़ जाते हैं, बिकॉज इनिशियल में आपके बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज हैं वो प्लेस होती हैं। ठीक है, वो आपको देना है, बिकॉज जब तक इनमें आपके वैल्यूज नहीं होंगी, इनिशियल व्हेन वी इंसर्ट द फर्स्ट मैसेज बिट, if there is no bit present in these two flip flop, then we can't get the output। तो आउटपुट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें आप इनिशियल में बाय डिफॉल्ट हमें 0 0 लेना पड़ता है। इसीलिए द रीजन बिहाइंड दिस कि व्हेन द मैसेज बिट ऑफ द 7 बिट बट वी गेट द कोडेड इन द फॉर्म ऑफ द 9 बिट, तो यही रीजन आपका है, due to the by default value, initial by default value, when we place 0 0 in these two get after the traversing the two steps, and after that we get the all the starting 3 bits in this module, तब आपको वैल्यूज मिलती है। इसलिए आपको जो बताया गया है किस तरीके से, ये इसलिए यहाँ पे 7 बिट का जो है 9 बिट आपको आउटपुट मिलता है, तो इसके पीछे ये रीजन है। एंड आफ्टर दैट अब आपको ये कोड फॉर्म हो गया, देन व्हाट इज द एक्चुअल कोड एंड द इंटरलीव्ड आउटपुट। इंटरलीविंग में क्या करेंगे आप, वही चीज है, आप पहला ये लेंगे, तो पहला आपका क्या हो गया 1 1 1 0 1 0 एंड देन 1 1, तो ये रहा आपका इंटरलीविंग। के बाद इंटरलीविंग प्रोसेस क्या होता है कि आपको यहाँ पे ये एक बिट इसका अब लेके इंटरलीव किए, वी गेट दिस वन, then second bit of the first stream and second bit of the first stream, sorry second stream, then we get this one। इस तरीके से हम इंटरलीविंग करते हैं एंड फाइनली वी गेट दिस कोड, एंड दिस इज एक्चुअल कोड CK, ये आपको फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, मैंने आपको ब्रीफ अभी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया हुआ है, और नेक्स्ट लेक्चर में, कमिंग लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्या कहते हैं, हमें किस तरीके से ये आपकी जनरेट हो रहा है, हाउ दिस कोड कैन बी जनरेटेड, हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज आपने ये चीज चलो ले लिया, इस कोड के बाद आप ये चीज फॉर्म कर रहे हैं, ये कोड मिल रहा है, बट इसके पीछे आपको रीजन नहीं पता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप ये कोड, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा किस तरीके से जनरेटर पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग दिस बिट स्ट्रीम ऑफ द मैसेज एंड देन कोड स्ट्रीम एक्चुअली फाइंड करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे किस तरीके से कोड फॉर्म हो रहा है, ये आपको कोड कैसे मिल रहा है, दैट इज बाय यूजिंग दिस कांसेप्ट। ये कांसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड वी गेट दिस वन, ये आपको मिलेगा। एंड फाइनली इंटरलीविंग मैंने बता दिया क्यों इंटरलीविंग करेंगे, बिकॉज एक्चुअल कोड कंसिस्ट ऑफ द 2 बिट, तो इंटरलीविंग में एक इसका बिट लेकर हम इंटरलीव करके दिखा देंगे। ठीक है, तो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द कन्वर्जन कोड, एंड आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये डिस्कस करूंगा किस तरीके से ये कोड्स आप जनरेट करें। दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।